اس وقت لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل رضا عابدی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امینڈمنٹ میں تو سپریم وہ چیز ہوتی ہے جو سفید کرے میرے بھائی، آپ تو گناہوں کی پوٹلی تھے، آپ کو ڈرائی کلین کر کے پاک کر کے عدالت میں جس پارلیمنٹ نے بٹھایا، سپریم پارلیمنٹ ہوئی، آپ نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ سپریم ہیں؟ سپریم پارلیمنٹ ہوئی جس نے آپ کو اختیار دیا، آپ کے گناہوں کو معاف کیا، حالانکہ شریعت میں، اسلام میں آپ کے لیے کہیں معافی نہیں ہے، آپ کا سیدھا راستہ دوزخ جاتا ہے۔ سورہ معاہدہ کے اندر ابو داؤد میں واضح طور پہ لکھا ہوا اگر قاضی غلطی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، معافی تو مجھ جیسے گناہگار کے لیے۔ میں اللہ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، لیکن آپ تو طلبگار بھی نہیں ہیں۔ آپ کس حیثیت سے یہاں بیٹھ کے اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے یہاں حجت الوداع کے خطبوں کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے یہاں خلفائے راشدین کے قولوں کو کوٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ خود بھول گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قاضی غلطی کرے گا تو اپنی تلوار سے اس کی گردن جدا کر دوں گا؟ تو آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ڈرائی کلین ہے، پارلیمنٹ ایک لانڈری ہے جس نے سیاستدانوں کے، صنعتکاروں کے، تاجروں کے، ججوں کے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے گناہوں کو پاک کیا۔ انہوں نے آپ کے گناہ بھی پاک کیے۔ تو جس لانڈری کے اندر آپ کی گندی پوٹلی لانڈری ہوتی ہے، جس ڈرائی کلین ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ تو پارلیمنٹ ہی سپریم ہے، پارلیمنٹ کے آپ تابع ہیں، پارلیمنٹ ہی آئین سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ ہی آئین بناتی ہے، اور آپ کسی طور پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پارلیمنٹ پہ کہیں حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کی اس جنگ کو میں قبول کرتا ہوں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو لانے میں جو رستہ آپ نے دکھایا تھا وہ رستے مجھے یاد ہے، اسی رستے سے نکال کے آپ کو باہر پھینکوں گا انشاءاللہ۔ اس پی سی او ججز کے وجود سے اس عدلیہ کو آزاد کرائیں گے۔ باقی تمام ججز ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اگر میں غلط باتیں کر رہا ہوں تو مجھے پہلی فرصت میں عدالت کے اندر بلایا جائے، اور اگر میں صحیح باتیں کر رہا ہوں تو میرا مقصد کسی کی تذلیل نہیں ہے، اصلاح کروانا ہے۔ میرا ملک اس وقت صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی ایجیٹیشن ہو۔ 3.5 سال ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، 3.5 سال بتا رہا ہوں، سائڈ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو اٹھایا گیا جس کے اندر آپ خود جج تھے، آپ خود جج تھے جب آپ نے جسٹس قیوم اور جسٹس راشد کو فارغ کیا تھا ایک سی ڈی سننے کے بعد۔ آپ نے اس دور کے اندر شہباز شریف پہ کیس فائل کرنے کا حکم نہیں دیا، جو کہ خود ایک جج کو حکم دے رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو تن دو۔ آپ نے وہ سی ڈی سننے کے بعد جسٹس قیوم، جسٹس راشد کو کیوں فارغ کیا؟ اگر ہم غلط تھے تو آپ اس وقت صدر زرداری کو آپ سزا دیتے۔ آپ ایسی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں گئے جس کا وجود جو ہے خود سوئز عدالتیں جو ہیں وہ انکار کر چکی تھی کہ نہیں یہ انویسٹیگیشن ہے، کوئی کیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ گئے۔ میں آپ کے سامنے 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں خواجہ شریف قتل سازش کیس اور وکلا تشدد کیس کی رپورٹ کو پبلش کر دیں اور اس کے کرداروں کو سزا دیں، کیونکہ وکیلوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ یہ وہ وکیل تھے جنہوں نے آزادی عدلیہ کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا، اس کے اندر کمیشن بھی آپ نے بنایا تھا، لیکن 8 مہینے تک آپ اس کو گرد زدہ ماحول کے اندر حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور فیصلے نہیں دیں گے۔ تو آپ مجھے تو توہین عدالت کے لیے آپ تمام لوگ بولیں، لیکن ان کو بھی تو ڈھیٹ بولیں، یہ بھی تو ڈھیٹ ہے۔ کیا یہ جج ہے؟ کیا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ کیا اصغر خان کیس کو جو انہوں نے اس طرح چلایا جس طرح چلائے جانے کا حق تھا؟ کیا احتساب عدالتوں کے اندر سے آئے ہوئے کیسز کے اوپر حکم امتناعی نہیں جاری کیا جو اکرم شیخ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نیب کیس نہیں کھول سکتا اس لیے کہ اس پہ حکم امتناعی ہے؟ تو 3.5 سال سے میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ تمام کیسز پہ مخالفین کے حکم امتناعی ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے صاحبزادے کا کیس آیا، آپ نے اس سے پوچھنے کا کشٹ کیا؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا نا کہ میرے پاس گاڑی خریدنے کو پیسہ نہیں ہے، گھر خریدنے کو پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس 900 ملین روپیہ کہاں سے آیا؟ رازیہ 1 BMW کار کی رجسٹریشن کس کے نام پر ہے؟ اور آج میں آپ کو بتاؤں، وہ شخص جو 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے نوکری کیا کرتا تھا وہ آج ملینز کا مالک ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ اس کے کمپنی کے آج یہ بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ یہ دکھانا چاہیں تو۔ ارسلان افتخار، اکاؤنٹ نمبر ID 0110417392001،
नेम F&A एंटरप्राइजेस और कंपनी का एड्रेस है चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद। A&F एंटरप्राइजेस, आपको सारी कॉपियां दे रहा हूं आज मैं जनाब। एफ सिल्क बैंक 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक साल में। अकाउंट नंबर 201202 गुलबर्ग ब्रांच, एड्रेस चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद। नाम बताइए इस कंपनी का। F&A आपको देते हैं, बिल्कुल अभी देंगे आपको, तमाम चीजें मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा। तारीख के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब, हुर्फे आम चौधरी PCO साहब, ये कौन सा कंपनी है जिसको ब्लू एरिया के अंदर एक खोखे का दफ्तर नहीं मिला, और आपके साहबजादे जिस अकाउंट पे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एड्रेस है चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद कंपनी का। मैं फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं इस सबूत के साथ। किस हैसियत के अंदर यह अकाउंट ऑपरेट हुआ चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद पे? क्या आईने पाकिस्तान में कहीं ये शिक लिखी है कि आप चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद के ऊपर कंपनी ऑपरेट करो? क्या आपके साहबजादे को यह इख्तियार है कि वो बैंक्स के तमाम एड्रेसेस और ट्रांजैक्शंस के अंदर और तमाम ठेकों के अंदर चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद का जिक्र करें? और ये एक ही नहीं, दूसरा अकाउंट नंबर हबीब बैंक 35 करोड़ रुपए ट्रांजेक्टेड। ये वो कॉपी है जिसके अंदर इस कंपनी के एज अ CEO के तौर पे ये सिग्नेचर है अरसलान इफ्तिखार चौधरी एज अ CEO। इसके अंदर ट्रांजैक्शन है जी 35 करोड़ की, अभी बैंक ब्रांच है, इसका भी आपको मैं देता हूं। क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड ये भी दिखा दो। क्रेडिट कार्ड नंबर 40258200 7566909008 बैंक अल-फलाह, ये लीजिए। ओके, क्रेडिट कार्ड का एड्रेस है अरसलान इफ्तिखार चौधरी, चीफ जस्टिस हाउस, जजेस एनक्लेव F5 नियर पंजाब हाउस इस्लामाबाद। अब इसके बावजूद अगर इफ्तिखार चौधरी साहब आप ये कहें ना मुझे तो पता ही नहीं चला, तो मेरे भाई मैं तो फिर इस शातिर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़े सच्चे भी आप हैं, सबसे बड़े शातिर भी आप हैं, और सबसे बड़े झूठ बोलने वाले भी आप हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन आपके घर पे हो रही है, पोस्ट आपके घर पे आ रही है, ट्रांजैक्शन बैंक स्लिप्स आपके घर के एड्रेस पे आ रही हैं। ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा बेटा क्या कर रहा था, तो सॉरी टू से यही वो आपका बेटा था जो पेट्रोल चुराता था, जो पिछले रेफरेंस के अंदर मौजूद है। यही वो आपका बेटा था जो एकॉर्ड के अंदर 145 लीटर पेट्रोल लेता था। मुझे पाकिस्तान में वो एकॉर्ड ला दो जिसमें 145 लीटर पेट्रोल आए, ले आओ। और आपको ये जान के हैरत होगी उस वक्त तक उस पंप के ऊपर पेट्रोल बिकता ही नहीं था, मेरा भाई डीजल बिकता था। तो मलिक रियाज से फिर मैं भी पूछने पे अहल हूं ना, तो किस चीज का बिजनेसमैन है मेरे भाई? ये तो पेट्रोल चोरता, इसकी गाड़ी की टंकी फुल करा देता, करोड़ों रुपए तुमने लगा दिए इसके ऊपर। मैं पाकिस्तान की आवाम से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, आया जो ये तकरीर कर रहे हैं खड़े होके, क्या ये तकरीरें करना इनका हक है? आया जो ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अदालतों में बैठ के, अभी तो तौहीन अदालत का कानून ही नहीं आया, आप तकरीर कर रहे हैं। अभी तो वजीर आजम घर ही नहीं किया, आप तकरीर कर रहे हैं। आप तमाम तौहीन अदालत के केसेस के ऊपर जो है मट्टी डाल के बैठे हुए, और एक वजीर आजम का ट्रायल करके उसको निकाल भी दिया आपने। आप हुक्म इम्तिनाई दिला रहे हैं, आपने वो तमाम दहशतगर्द रिलीज कर दिए जो बाहर निकल निकल के हमें कत्ल कर रहे हैं। और उस रिकॉर्डेड दहशतगर्द जो 130 कत्ल में आपके सामने खड़े होकर कहता है कि हाँ ये मैंने कत्ल किए, मुझसे वो सलूक करना जो कल बर्दाश्त कर सको, आपने उसको रिलीज कर दिया। गुलाम रजा शाह नकवी को मैं 3 साल से गा रहा हूं आपके पास बैठ के, सिर्फ एग्जाम्पल आउट ऑफ शिया। आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मैं आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मेरी बड़ी खिदमत है, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकता हूं कि यार उसको फांसी दे दो,
मैं कब कह रहा हूं आप उसको रिलीज करो, लेकिन 3.5 साल में आपने जिंदा दुर्गो कर दिया, 16 साल में एक पेशी नहीं दी आपने। ऐसे 8,000 कैदी हैं, मैं आपके सामने लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊं कि मैंने आज से वो तमाम इन्वेस्टिगेशन खुद टेकअप करूंगा। मैं बहुत जल्दी लंदन जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी दुबई जा रहा हूं, जो अपने मामू के नाम पे इन्होंने अपना अकाउंट शिफ्ट किया है, और वो बार्कलेस बैंक के अंदर मैं वो डिटेल्स दूंगा आपको। बेटे ने देखे, मेरी बात सुने, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं एक सवाल कर सकता हूं ना आपसे। जब जस्टिस डोगर का केस आया था, उस वक्त आपने उसकी बेटी पे रख के उसके बाप की इज्जत को खूब उछाला गया इस पाकिस्तान में। यह भी नहीं सोचा गया कि वो गरीब लड़की, नंबर्स का मसला था ना, कल को मां बनेगी, ससुराल के अंदर ताने बर्दाश्त करेगी, उसके बच्चे जब तक हयात है, उसके नवासे, उसके पोते, वो भी ताने बर्दाश्त करेंगे कि तुम्हारी दादी ये थी। आपने उस मासूम लड़की का केस उछाला और तमाम साहिबे इल्म लोगों ने ये कहा ऑफ कोर्स डोगर जिम्मेदार है, और यहां पर आप कहते हैं कि नहीं, बेटे का मामला बाप पे कैसे आएगा, इसको मुनाफिकत नहीं कहते। ऑफ कोर्स इफ्तिखार चौधरी तुम जिम्मेदार हो, इस्तीफा दो। मैं इफ्तिखार चौधरी से और पीसीओ जजेस से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं, और अगर तुम लोगों ने इज्जत से इस्तीफा नहीं दिया तो ये फर्जंदे पाकिस्तान तुम्हें निकाल के अदालत से बाहर फेंकेगा। मेरी कोई भी जंग बंदूक की जंग नहीं है, मेरी जंग सिर्फ मेरी जुबान की जंग है। मैं पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहता कि आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त शदीद खतरात में। मेरी गुजारिश है अदालत के बकिया जजों से कि खुदा का वास्ता एक हुक्म जारी करें कि 922 तालिबान कैदी जो अफवाज पाकिस्तान पे हमले में मुलविस थे, फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। फौरी तौर पे हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए। फौरी तौर पे आप तमाम जजेस इस पे एक्शन लेते हुए ये हुक्म जारी करें कि तमाम केसों पे बिल्कुल मुंसिफाना अंदाज के अंदर चला के उनको फैसलों की तरफ ले जाया जाए। तमाम हुक्म इम्तिनाई फौरी तौर पे खत्म किए जाए और अपोजिशन के तमाम केसेस को चालू किया जाए। चौथी चीज, थक तो नहीं गए भाई? 3 साल हो गए मुझे, 3 years। मैं भी एक इंसान हूं। अगर 3 साल में अहलिया भी बार बार जिद करता रहे तो आदमी साइको हो जाएगा। ये जो उलमाए दीन मुझ पे पागलपन के फतवे दे रहे हैं, ये सही दे रहे हैं। और ये इफ्तिखार चौधरी अब 2 डिस्प्लिन और खा लेना, क्योंकि पागल को तो सजा ही नहीं होती। मेरे पास तो सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। ये है PLD 2000। देखो मेरे भाई, अगर मैं कहीं गलत हूं ना तो मुझे आप बेशक गलत बोले, मैं पांव पे हाथ लगा के आपसे माफी मांगू। लेकिन अगर मैं सही हूं ना तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग सिर्फ मेरा साथ दें। मैं एक आवाज बुलंद कर रहा हूं, मैं भी खतरात के अंदर मौजूद हूं, मैं अकेला घूम रहा हूं। मैं बताता हूं, आ रहे ना आगे, थोड़ा इसको क्लियर कर ले। PLD 2000 मेरे भाई, ये वो इफ्तिखार चौधरी साहब उसके अंदर जज है। ये PLD 2000 जफर अली शाह वर्सेस स्टेट। ये है 6 अरब रुपया, जिसका कल आपने तहरीक इंसाफ के लीडरों से और बाकायदा नवाज लीग से भी आपने ये इस पे गुफ्तगू सुनी होगी। ये 6 अरब रुपए, इसके तहत आपने कू वैलिडेट किया था और इस पैसे को आवाम से छीना हुआ पैसा डिक्लेयर किया था। इसके अंदर आपके सिग्नेचर मौजूद है, कहीं भी इख्तिलाफी नोट नहीं है। पूछना इफ्तिखार चौधरी साहब आपसे ये है, कल आप तकरीर कर रहे थे मुल्तान में और इरशाद फरमा रहे थे हम तो मुंसिफाना फैसले करेंगे, कोई हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, बुरा भला कह ले, हम इंसाफ करेंगे। तो यही तो मसला है। मैं बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं, और इंसाफ आप फिर भी नहीं कर रहे। एक आंख से तो इंसाफ नहीं होता ना, दोनों आंखों से इंसाफ होता है। ये 6 अरब रुपए पे आपके सिग्नेचर है कि लूटी हुई रकम है। सवाल मेरा पूरे पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम के जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उर्फ चौधरी PCO साहब आपसे ये है, सुइज अदालतों में 1.5 अरब रुपए के ऊपर 3.5 साल तक आप केस चलाते रहे और 11 साल पहले भी केस चलता रहा और साबित नहीं हो सका, और अब आप मुसलसल चला रहे हैं। उसमें आप एक वजीर आजम को खा गए, वुज़रा को आप तस्लील का निशाना बना रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर रहे हैं, आप सिर्फ देखने के ऊपर लोगों को जेल भेज रहे हैं। पूछना ये, इसमें कितनी पेशियां की हैं आपने? इसमें रिव्यू पिटिशन फाइल की थी जफर अली शाह साहब ने 2007 में, ऑब्जेक्शन लग गया था, वकील का लाइसेंस वैलिडेट नहीं था, तो वो पिटिशन वापस हो गई। वो ऑब्जेक्शन भी जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं था, वो प्लांटेड ऑब्जेक्शन था। उस केस को मंजर आम पे लाना ही नहीं था इन्होंने। ये 6 अरब रुपए आज की तारीख के 18 अरब रुपए। इमरान खान कल कह रहा था और नवाज वाले कह रहे थे
आओ कोई जगह तलाश कर लेते हैं, चीफ जस्टिस के पास चलते हैं जहां फैसला ले सकें कि हमने ये किया ये नहीं किया। तो ये ऑलरेडी चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद है मेरे भाई। यही तो रो रहा हूं 3.5 साल से, ये केस क्यों नहीं चल रहा? क्या ये बांग्लादेश के टके हैं? ये केस नहीं चलेगा। ये केस अगर इफ्तिखार चौधरी चला के फैसला दे दे, मैं वो सब कहने पे तैयार हो जाऊंगा जो आप कहेंगे। लेकिन अगर 3.5 साल तक मैं चीखता रहा टेलीविजन में बैठ के, अच्छा इसमें भी कहा जाता है टेलीविजन पे क्यों बैठते हैं आप, दरख्वास्त दें। अभी एक प्रोसीडिंग में आपने कामरान खान साहब से कहा था हम तो आपको रोजाना देखते हैं, आज आप हमें देखें। तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में कहां लिखा है कि आप रोजाना कामरान खान को देखें? आपको तो टीवी देखना ही अलाउ नहीं है, और अगर आप वो देख रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं कि आप ये भी ना देखें। 3.5 साल से चीख रहा हूं मैं, तो मैं पागल तो हो जाऊंगा ना यार, इंसान हो ना भाई, मेरी भी कुछ मशीनरी फेल हो सकती है। मुझे अब पूरा यकीन है, मैं दावे से कहता हूं ये आजाद अदलिया नहीं है, ये खुद मुख्तार अदलिया है। इस अदलिया पे जराइम पेशा अनासिर का कब्जा हो गया है। दे आर क्रिमिनल्स। अफवाज पाकिस्तान के कातिलों को छोड़ने वाला क्रिमिनल, पीसीओ पे हलफ लेने वाला क्रिमिनल, और आपने तो 2 बार लिया है। डोगर पे भी तो यही केस था ना कि आपने पीसीओ पे हलफ लिया है, तो इन पे भी वही केस है। क्यों दोहरा में आ रहे हमारे मुल्क में? मैं हुकूमत पाकिस्तान से तकाजा करता हूं कि पार्लियामेंट की ताकत को बहाल किया जाए, ताकि आज के बाद कोई पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन में सरनगू होके ना जा सके। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही वो इदारा है, वो ड्राई क्लीन है जिसमें इन गंदी पोटलियों को साफ किया गया। पार्लियामेंट ही वो इदारा है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है। हां, एक रास्ता है, माजी को फरामोश करें। ये माजी ही आजाद। कल को नवाज शरीफ साहब आएंगे, मैं उनके पीछे लग जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब आएंगे, मैं उनके पीछे लग जाऊंगा। हमजा शहबाज आएंगे, मैं उनके पीछे लग जाऊंगा। उसका बेटा आएगा, मैं दादा के पीछे लग जाऊंगा। उसका पोता आएगा, मैं परदादा के पीछे लग जाऊंगा। तो इस पाकिस्तान में निजाम ही ये माजी है। माजी किसी का साफ नहीं था। इमरान खान ने भी माफी मांगी, नहीं मांगी? किस चीज की माफी मांगी? जुर्म किया तो माफी मांगी ना। मियां साहब को तो आपने खुली माफी दी, ये माफीनामा, बहरहाल ये मैं दिखाता रहा हूं, खुली माफी। 18वीं तरमीम में अगर नून लीग ये कहती है, 18वीं तरमीम में, सुने गौर से, 18वीं तरमीम में अगर नून लीग ये कहती है कि उस चीज को खत्म कर दिया गया, वाइड एबिन इशू कर दिया गया, तो आपके गुना भी इसी पार्लियामेंट ने धोए। तो पार्लियामेंट सुप्रीम हुई ना। आप इसके ऊपर अदालत का फैसला लाएं अगर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है तो। PLD 2000 का ऊपर मुझे तफसीली फैसला चाहिए PMLN से विद इन 72 आवर्स। चाहे पीर को अदालत लगा के चीफ जस्टिस साहब दे दें 72 घंटे में। 72 घंटे में फैसला नहीं आया तो मियां साहिबान की पार्टी के ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को 18वीं तरमीम में अगर पार्लियामेंट ने धोया है तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदालत ने तो नहीं धोया। तो मेरे प्यारे भाई, सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि इंसाफ घर से शुरू हो, हर शख्स अपने घर से इंसाफ का अमल का आगाज करे। चीफ जस्टिस साहब 6 महीने कबल जब एतजाज अहसन साहब ने आपको आगाह किया, एतजाज अहसन ने, कि मैं ये चीजें देख के आ रहा हूं और मैंने ये चीजें सुनी है, तो मैं आपको कसम खा के कहता हूं एतजाज अहसन ने यह भी बताया था कि बैंक अकाउंट्स आपके घर के एड्रेस पर, CJ हाउस इस्लामाबाद। मैं आपको चीफ जस्टिस उस वक्त मानता, उसी वक्त आप कमीशन परफॉर्म करते, 6 महीने का इंतजार नहीं करते, मलिक रियाज बहरिया का इंतजार नहीं करते। मैं मलिक रियाज बहरिया के पर्सनल लगाए हुए इल्जामात में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसके अंदर ये करप्शन के केसेस हैं, मैंने उस पर इंक्वायरी की और आज ये आपके सामने क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट सामने लाके इसमें 1 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन है, 1 अरब। और अभी 9 अकाउंट्स में लेके आऊंगा सामने, 9 अकाउंट्स। मैं इसकी प्रॉपर्टी को सामने लेके आऊंगा, मैं इसके ठेकों को सामने लेके आऊंगा जो इसने आईटी के अंदर लिए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये सेल फोन प्रोवाइडर कंपनीज ने जो 46 अरब रुपए देने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस पे हाई कोर्ट से स्टे किसने दिलवाया? मैं पूछना चाहूंगा। और मैं इस चीज को ईद से कबल डिस्क्लोज करूंगा कि उसको स्टे दिलाने में बाकायदा रकम ली गई है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बनने का ऐलान किया, सबसे पहले उसको खुशामदीद हमने का। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने सियासत में आने का ऐलान किया पाकिस्तान की,
हमने उसको खुश आमदेद कहा। जो सियासी जमात इस प्लेटफॉर्म पे आएगी जो विफाक को मजबूत करेगी, पीपल्स पार्टी उसको अपनी कामयाबी तसव्वुर करेगी। पीपल्स पार्टी फिका है, इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा, ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अल्लाह का शुक्र है, आप हमें डाकू कहें, चोर कहें, बदकिरदार कहें, शराबी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन साथ में ये भी तो कहें ये तालिबानी शराब बेचते हैं कि आपको नहीं पता यहाँ शराब महंगी हो गई थी जब नेटो की सप्लाई बंद हो गई थी। तो यही तालिबानी सप्लाई यहाँ पे शराब बेचते हैं। आप हमें तो सब कुछ कहें, उनको कुछ ना कहें। आप उनसे भी पूछिए, ट्राले मेरे मालिक तो नहीं है, पंजाब वालों के तो नहीं है, न सिंध वालों के, न पख्तूनख्वा वालों के, ये तो सरहद वालों के सारे, वो जो अफगानिस्तान सरहद है? ये लूटते भी हैं, ये क्लेम भी करते हैं इंश्योरेंस, ये बेच भी देते हैं। तो ये अपने ट्राले ही बंद करते हैं, नेटो सप्लाई वैसे ही रुक जाएगी। और अगर नेटो सप्लाई वाकई किसी मुसलमान मुल्क पे हमला है तो जो दोनों मुल्क जहां से ये सप्लाई आ रही है दोनों मुसलमान, तो इब्तिदा वहां से करो। ये तो नहीं होगा कि आप वहां पे अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलो, पूरी दुनिया में आप वैसे ही तना हो चुके हो। आप बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से पूछो आपका इमेज क्या है, हर कोई हमें तालिबान कहता है। आप बैरूनी दुनिया को बताओ, हमारी 41,000 लाशें, हमारी नौजवान माओ बहनों की लाशें, बच्चों की लाशें, उलमाए दीन की लाशें, अफवाज पाकिस्तान की लाशें, गयूर पख्तूनों की लाशें, गयूर पख्तूनों की, जिसमें सबसे ज्यादा शक किया जाता है।